Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in online support program. I am your computer teacher Musharraf Naseem and I belong to APS Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. Yes students, as you all know that you all are being promoted to the next classes without any examination or result conduction. So you need to be very vigilant and very careful about the next class. I welcome you all in your class 10th, that is SSC part 2. And I hope that you all are going to put all your efforts all together and will study by your heart. First of all, I would like to introduce you to the textbook that you are going to purchase for the next class. That is textbook published by the National Book Foundation, and you all are supposed to take the latest version of that book, as last year we have to face many difficulties regarding the versions of the books. So you all are requested to please purchase the latest book version, that is approximately 2019 or 2020. Coming towards to the next step, I am going to discuss the paper pattern with you in our SSC part 2 exam. Your paper is divided into 3 sections. Section number 1 is section number A, that conducts of MCQs. Your MCQs are going to be of 12 marks, and then we are having section B. Section B consists of 27 marks, that are consist of 9 questions. You have to attempt from 11 to 12 questions. You have to attempt 9 questions, and each question carries 3 marks. You can have question answer session. You can also have creating the outputs. You can have the technical points on that also. And then we are having section C. Section C is of 16 marks, in which you have to select 2 long questions. Each question may be categorized into parts, and that can be a long question, that is 2 into 8. If you want to see the model paper, you can visit the official website of FBISC, and then you can download the official model paper. Alright students, now coming towards the block syllabus. In your first term examination, you are going to have first 5 chapters in your syllabus, and you have to cover them all by all means. The chapter number 1 is programming technique, and chapter number 2 is programming in C language. Chapter number 3 is input and output handling. Chapter number 4 control conditional control structure, and chapter number 5 is loop control structure. Okay ji students, let's start chapter number 1, that is programming techniques. In programming techniques, we are going to study what we have to do for doing some programs, what we have to do for being a good programmer, what are the steps that can make us to make a proper program. So first of all, you all are supposed to open your textbooks and read out the passage. I am trying to explain, and if you have any query, do contact me, and I am always available for answering your queries. Okay, I am reading the passage. You are supposed to open your books. First of all, understanding the problem, what the problem is. The book says, solving problem is the main task of computer science, which is the job of computer programmer. Programmer must first understand how a human solve a problem, then translate it into a set of instructions in a programming language that a computer can understand and execute. जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि प्रोग्रामर को सबसे पहले क्या करना होगा कि वो प्रोग्रामर जो है पहले इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा. उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेगा कि किस किस तरीके से जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और इन सारे सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली उसमें से जो बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन होगा वो प्रोग्रामर ने सेलेक्ट करना होता है. हाउ अ प्रोग्रामर कैन सेलेक्ट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन. किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोई बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन जो है वो किस तरह से प्रोग्रामर जो है वो सेलेक्ट कर सकता है. द फॉलोइंग 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर. The very first thing is defining the problem. If you are not able to define the problem, if you are not able
to calculate what the problem is, you might never be a good programmer. For defining the programmer, first you have to go through the problem, what the problem is. The book says defining the problem is initial stage of problem solving. It is very important to understand the problem before the programmer starts working on its solution. अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, आप उसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. The following are the steps to properly define and understand the problem. How you can understand the problem. What you have to do, listen to the points, carefully read the problem to understand what it tells. If you are having some stated problem, you are supposed to read out that statement, what the statement says. आपने उसको read out करना है, उस problem को देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो problem क्या है. Find out what the problem asks to do. उस problem में आपके करने को क्या है, आप क्या कर सकते हो. What information can be obtained from the problem. आपको जो गिवन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में से जो आपके पास गिवन मटेरियल है वो क्या है. यानी कि आप जैसे कहते हो कि जी हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो आप अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से निकालोगे. What is required to be calculated as the solution of the problem. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप क्या काम कर सकते हो उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं जब भी आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है. तो नाउ इफ़ यू कैन सी योर बुक्स, वी आर हैविंग 2 प्रॉब्लम्स listed here. Problem number 1 says a person is unhappy with a product or services he or she has purchased from a company. After reading the above statement, we understand that a customer has purchased any product or services from a company and now the customer is not satisfied with it. This statement defines the problem clearly and requires the solution. It is a general type of problem. जी, तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि आपकी बुक पे मेंशन की हुई है कि आप किसी भी मार्केट प्लेस पर जाते हो, आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हो. प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद जब आप उसको यूज़ करते हो तो परचेज़ करने के टाइम के ऊपर जो आपके माइंड के अंदर उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो चीज़ें आपके उस लेवल को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जो है वो खुश नहीं होगे, अनसेटिस्फाइड होगे. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो इसमें क्या बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रोडक्ट परचेजिंग से अनहैप्पी है. वो क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरी. तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये प्रॉपरली बता रही है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि एक कस्टमर है जो है वो अनहैप्पी है किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग के साथ. तो ये प्रॉब्लम की कैटेगरी कौन सी आएगी? दिस इज़ ए जर्नल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी पर्सन जो है कोई प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर सकता है और उस पर कोई भी इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को एवरेज का फार्मूला नहीं आता तो आप लोग इसकी एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हैव टू बी फाउंड. इसमें प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया हुआ है कि आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो आना चाहिए. दिस इज़ न्यूमेरिक प्रॉब्लम. क्या कह रहा है? दिस इज़ न्यूमेरिक प्रॉब्लम. किस तरह की प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रॉब्लम किस तरह की थी? वो जनरल प्रॉब्लम थी, वो किसी को भी हो सकती थी, कोई भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो सकता था. और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? न्यूमेरिक प्रॉब्लम है जो कि कैलकुलेशंस या फार्मूलाज की मदद के साथ जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. आई होप द प्रॉब्लम्स आर क्लियर टू यू. ओके गर्ल्स, वंस यू आर डन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट का पता चल जाता है, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हो, आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है. यानी कि आपने उस प्रॉब्लम में से चीज़ें निकालनी है कि आपको इनपुट्स क्या गिवन है, आपने उसके क्रॉसपॉन्डिंगली उसके पॉसिबल सोल्यूशंस जो हैं वो किस तरह से निकालने हैं. तो नेक्स्ट स्टेज आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है कि आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है. एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. At this stage of problem solving, the programmer investigates the problem and gathers as much information as possible to find a solution. ठीक है जी, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से आपको जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपने उसको एक रफ साइड पे, अगर आप हैंड रिटन काम करें तो आप उसको रफ साइड पे लिख लो, अगर नहीं तो आप अपने माइंड में जो है वो अपनी चीज़ें जो है प्रिपेयर कर लो. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम. अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन जो है वो रखनी है. इस
इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जो भी प्रॉब्लम आपको मेंशन की गई है, क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल है, या क्या वो प्रॉब्लम कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व की जा सकती है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट के देखना है, व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि मुझे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। पॉइंट नंबर 3 आपने क्या देखना है, व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है जी, प्रॉब्लम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंदर ना तो एरर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, बल्कि उसका जो पॉसिबल आउटकम है वो भी गलत होने के चांसेस हैं। तो आपने क्या करना है, उसके प्रॉपर सीक्वेंस जो हैं या प्रॉपर स्टेप्स बनाने हैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट्स। ठीक है, आपने उनके इनपुट्स जो हैं वो चेक करने हैं, उसके पॉसिबल आउटपुट्स क्या आने चाहिए या क्या होने चाहिए वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं। हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल। हमारी किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आपने उसके जितने भी मैक्सिमम तरीके हैं या मैक्सिमम सोल्यूशंस हैं वो आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद विच सोल्यूशन इज़ द बेस्ट एंड वाई। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी सोल्यूशंस के लिए, आपने उन सोल्यूशंस में से बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। बेस्ट सोल्यूशन कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपका सोल्यूशन जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें टाइम कम लग रहा हो और जो है वो आपका मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करके दे रहा हो। ठीक है, तो विच सोल्यूशन इज़ द बेस्ट एंड वाई। you should have the reasons that why you are selecting the best solution and what is the reason behind that. How solution will be implemented once you are done with the solution selection of the solution, then you have to see how the solution is to be implemented. क्या वो किसी आप बाय हैंड उसको इम्प्लीमेंट करोगे या वो जो है वो किसी प्रॉपर मैथडोलॉजी जो है उसको फॉलो करेगा, या कंप्यूटर की हेल्प से वो फॉलो होना है, या किस भी तरीके से फॉलो होना है, तो वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किस तरह से होना है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है जी। उसके बाद टू एनालाइज द प्रॉब्लम, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए आपने फिर मज़ीद कौन से पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में रखने। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड एंड सम इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी गैदर्ड। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अपने माइंड में रखने हैं और उसके अलावा आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है। वंस यू आर डन विद द इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, अब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो है वो चेक करने हैं कि अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट लेंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग मज़ीद उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रोडक्ट वाली एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक आपका कस्टमर जो है वो कस्टमर सर्विसेज के साथ अनहैप्पी है, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद अनहैप्पी है, तो उसको क्या करना होगा। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट परचेज़ की थी और मुझे जो है प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, तो उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे सोचना चाहिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। क्या मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी सेकंड पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने लिए कुछ डिसीजंस जो है वो सबसे पहले लेने हैं। फॉर एग्जांपल डू यू वांट अ रिफंड, कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो वापस करवा के अपने पैसे वापस करवाना चाह रहे हैं, और अ रिप्लेसमेंट, या फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को वापस करना चाह रहे हैं और उसकी जगह के ऊपर दूसरी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट ये आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है, वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विसेज अगेन, दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आप जो है उनके साथ जो भी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वाले, तो क्या आप दोबारा उनसे सर्विसेज लेना चाहेंगे। आपने ये डिसीजन लेना है कि अगर आप उनसे दोबारा सर्विसेज लेना चाहेंगे, अगर ऐसा है तो फिर आपने जो है वो कस्टमर सर्विसेज के साथ कोई ना कोई अपना स्टैंडर्ड जो है, कोई मीटिंग जो है उसकी एग्रीमेंटेशन जो है वो पहले करवा लेनी है कि जी अगर इस दफ़ा ऐसा हुआ तो फिर जो है फिर मैंने इसको जो है वो टॉलरेट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप क्या करोगे, द मोर स्पेसिफिक यू आर the more likely it is that you will get the outcome you want। ठीक है, कि आप जितना भी प्रिसाइज होंगे, जितना टू द पॉइंट होंगे, उतना ही आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है वो पॉसिबल है कि आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी जो है वो निकाला जाएगा। उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, ये आपने पॉइंट्स देख लिए कि आप अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन। ठीक है, आपने जिस भी पर्सन के साथ जो है वो डिस्कशन करनी है, आपके माइंड में कुछ क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आप डिस्कस करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग उसी प्रोडक्ट के बारे में एग्जांपल को लेके साथ चल रहे हैं। फाइंड आउट अबाउट योर लीगल राइट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर सकते हो, क्या बात नहीं कर सकते। आपको अपने लीगल राइट्स पता होने चाहिए कि जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपने लीगल राइट्स हैं वो पता होने चाहिए। राइट डाउन एग्जैक्टली
व्हाट योर कंप्लेंट इज़ इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट्स एंड टाइम्स। ठीक है जी, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई क्यूरी या जो भी कंप्लेन आप लिखवाना चाह रहे हो तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, कौन से दिन, कौन से टाइम पे, कौन सी तारीख पे आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसमें क्या क्या इश्यूज़ आए जो कि आपने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, गैदर एनी रेलिवेंट पेपर वर्क, आप उससे रिलेटेड कोई पेपर वर्क जो है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट दैट that missold you or a quote that the traders gave you. Find out what the organization's complaint process is and follow this. ठीक है जी, आपने उससे रिलेटेड जो भी आपको सबूत इकट्ठे कर सकते हो आप वो कर लो। ठीक है, हैव अ लुक ऑन देयर वेबसाइट और एनी डॉक्यूमेंटेशन दे हैव गिवन यू। ठीक है, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चेक करो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। हो सकता है कि कुछ जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज होती हैं उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए जो है वो बेनिफिट्स नहीं रखते या फिर आपको सूट नहीं करते। तो अगर आप पहले उन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लोगे तो आपको डायलॉग या डिस्कशन करते हुए जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। टू एनालाइज प्रॉब्लम नंबर 2 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या थी, प्रॉब्लम नंबर 1 से रिलेटेड हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देख ली कि हम लोग जो है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्यूरी करेंगे, किस किस के साथ हमने करना है, हमने अपने एंड के ऊपर होमवर्क कैसे करना है, हम लोग उस तरह से किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट्स क्या हैं, एंड अप टू ऑल दैट एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 जो हम लोगों ने देखी थी वो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी कि हम लोगों ने किसी भी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपने सबसे पहले देखना है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको उसके स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो इकट्ठे कर लोगे, एक जगह पर लिख लोगे। फिर आपने सेकंड पॉइंट पे क्या देखना है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उन सबको ऐड करना है और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिवाइड करना है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स इकट्ठे कर लिए और उसके बाद नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं वो नंबर लिख लिया। और तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, उन मार्क्स को आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग उसका एवरेज रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास जो सोल्यूशंस होते हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं वो हम लोगों ने गो थ्रू करने हैं। तो कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम की तरफ आ जाए, आप अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो देखें कैंडिडेट सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया हुआ है। ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स आर नॉन एज कैंडिडेट सोल्यूशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ है, यू हैव टू मार्क इट इंपॉर्टेंट एज वेल। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो रेज होता है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स आर नॉन एज कैंडिडेट सोल्यूशंस। टू फाइंड कैंडिडेट सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम प्रोग्रामर हैज़ टू look for different methods to solve the problem and come up with several solutions। ठीक है जी, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जाके बहुत सारे सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके स्ट्रेट कट जो है वो आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको जो है वो यहाँ वहाँ से घूम फिर के वापस आना पड़ता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो बेस्ट प्रोग्रामर होता है, उसने उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो निकल रहे होते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, जिस पे तरीके से निकल रहे होते हैं उसने उन सबको गो थ्रू करना होता है और वहाँ से जो एक उसका कैलकुलेटेड जो रिज़ल्ट आता है वहाँ से उसने उसमें से जो बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन मिल रहा होगा वो उसने निकाल के लाना है। फॉर एग्जांपल मैनी सोल्यूशंस कैन बी कंसिडर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, कि जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड वो जो प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि इसका पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि जी द कस्टमर कैन लॉट द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी। वो कस्टमर क्या करे, बस डायरेक्ट कंपनी में चला जाए और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा दे। दूसरा सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है, द कस्टमर कैन ऑल्सो यूज़ द कोरियर सर्विस टू सेंड द प्रोडक्ट बैक। अगर उसने ऑनलाइन परचेजिंग की है तो वो उसकी ऑनलाइन ही रिटर्न पॉलिसी जो है उसके साथ उसको प्रोडक्ट को वापस भेज सकता है। सोल्यूशन नंबर 3 क्या होगा, द कस्टमर कैन यूज़ कंपनीज वेबसाइट्स टू फाइल द कंप्लेन। ठीक है जी, अगर उसकी ऑफिशियल कोई वेबसाइट है तो वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसकी कंप्लेन करवा सकता है। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशंस ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सेलेक्टेड। द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया।
आपका जो सोल्यूशन है उसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है? There are three major points that are to be used under consideration while you are selecting any candidate solution. The point number one is speed, point number two is cost, and the point number three is complexity. सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप जो बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन जो है वो निकाल रहे हैं उसमें आपने उसकी स्पीड के बारे में जो है वो चेक करना है. द सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स व्हेन द सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम शुड रन फास्ट. ठीक है जी. कि अब हम लोग जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने चीज़ों को लिंक्ड रखना है. ऐसा ना हो कि आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर ही रह जाओ और प्रोग्राम्स जो है वो आपके कहीं और रह जाएं. तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हो वो सोल्यूशन आपने एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है. अगर आपका सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड करेगा तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो फास्टली रन नहीं होगा. सो मेक वेरी श्योर कि आप जो भी इसका सोल्यूशन निकालो वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और वो आपके प्रोग्राम की स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. पॉइंट नंबर टू है उसकी कॉस्ट. कॉस्ट क्या है कि वो ना तो इतना शदीद महंगा हो कि कोई अफोर्ड ना कर सके और ना ही वो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उसको एक्सेस करने के लिए जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े. तो द सिलेक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. कि वो आपकी कॉस्ट के अंदर या आपके बजट के अंदर या आपकी फिजिबिलिटी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. इसके अलावा उसमें उसकी कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए. पहली बात हमने क्या देखी कि उसकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो आपके प्रोग्राम की स्पीड को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी कॉस्ट आपके प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. और नंबर थ्री complexity. The selected solution of the problem should not be complicated. बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए. इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मर्ज हुई ना हो. इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सिंपल स्टेप्स. ठीक है. उसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस कम से कम होनी चाहिए और उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. दिस इज़ द वे दैट यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज़ नॉन एज द कैंडिडेट सोल्यूशन. आई होप यू गॉट द आइडिया. अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी है. इसमें जो भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं आई होप कि वो आप सबको क्लियर हो जाए. इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ऑल राइट गर्ल्स, कमिंग टू अ लाइटर मोड के अब हम लोग जो हैं हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा सा असेस करते हैं अपने आप को. आप लोगों ने करना क्या है कि आपने कोई भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठानी है, उनको स्टेट करना है. आपकी बुक के ऊपर जो है प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं, आपने उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो हैं वो निकालने हैं और उसके बाद जो है वो आपने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं मुझे सबमिट करवा देनी है. तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, हाउ टू मेक टी, राइट इट्स स्टेप्स टू मेक टी. अब चाय बनाना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल काम है चाय बनाना. लेकिन ये है कि आपने इसके स्टेप्स को किस तरह से लिखना है, किस तरह से प्रॉब्लम को स्टेट करना है. आपकी बुक के ऊपर जो चीज़ें मेंशन हुई हुई आपने उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करना है. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ये जो मैंने एग्जाम्पल टी मेकिंग की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है ये आप इंक्लूड नहीं करोगे. आप अदर देन दैट एग्जांपल आप 3 डेली लाइफ प्रॉब्लम जो है वो मुझे यहाँ पे कोड करके दोगे और उनके आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो बताने हैं. सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 3, आप जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस उसके निकाल रहे हो आपने वो निकालने हैं और उसके बाद आपने उनका एक कोई सर्टिफाइड कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो निकाल के मेंशन करना है और आपने साथ में मेंशन करना है कि आप ये सोल्यूशन क्यों निकाल रहे हो. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.